गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स और दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर एडिटोरियल की क्लास। द टॉपिक इज फाउल प्ले एंड द वोकैबुलरी वर्ड्स आर फर्स्ट harassment. Harassment is aggressive pressure और intimidation. बहुत ज़्यादा प्रेशर होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा किसी को हरास करना, किसी को सप्रेस करना किसी भी चीज़ के ऊपर इज harassment. Devastate is destroy, किसी भी चीज़ को destroy कर देना is devastating it. Third is prima facie. Prima facie means based on the first impression. अगर कोई इल्ज़ाम किसी पे लगा है तो जब तक वो गलत प्रूव नहीं हो जाता वो एक्यूजेशन, तब तक हम उसको प्रिमा फेशी मानते हैं, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, और जब तक गलत प्रूव नहीं होता तब तक उसको ब्लेम माना जाता है. टर्मिनेटेड इज एंड. पेनलाइज्ड इज पेनल्टी या पनिशमेंट. दिस मैटर इज penalized under the law, that is it is due for penalty or punishment under the law. Grim is serious, gloomy. Very serious is very grim. कुछ लोग बहुत ग्रिम रहते हैं, हमेशा रोंदी सी शक्ल बना के रखते हैं. They are very serious, very grim, very gloomy, right? Vulnerable is easily attacked or harmed. किसी भी चीज़ जो कि बहुत ही जल्दी किसी के इफेक्ट में आ जाए, that is very vulnerable. The people who listen to others' advice very easily and they follow everyone's advice, whether it is wrong, whether it is right, they are vulnerable to talk. Predators are animals who eat others. वो animals जो दूसरों को खाते हैं, all the carnivorous animals are predators. Proximity is closeness, nearness. किसी भी चीज़ का बहुत पास होना, close होना is proximity. Dreary is dull, bleak, repeating. Dreary is बहुत ही dull होना, uninteresting होना, और किसी भी चीज़ का बार बार रूटीन में repeat होना is dreary. Sordid is dirty, immoral or dishonorable, right? एथिक्स से रिलेटेड नहीं होना किसी चीज का इज सॉर्टेड. रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन. किसी भी चीज को रेजिस्ट करना इज हम उसको अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, इज रेजिस्टेंस. गाइज इज लुक लाइक और प्रिटेंड. डिस्गाइज से ही गाइज बना है, दैट इज किसी भी चीज को प्रिटेंड करना, उसके जैसा दिखना, उसके जैसा लगना इज गाइज. बॉच्ड इज केयरलेसली डन वर्क. बहुत ही केयरलेसली किसी काम को करना इज बॉच्ड वर्क. रिलेंटलेस इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, नेवर एंडिंग. दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अपीयर्स टू बी relentless. It is continuous, it is never ending, and we are trapped into it, right? So let's begin with the newspaper editorial of today, that is foul play. Today's editorial is foul play. Recently India has gone through a very bad news, and that is कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक साइक्लिस्ट ने, जो कि नेशनल चैम्पियन रही हैं, उन्होंने कंप्लेंट की towards the chief coach R.K. Sharma of inappropriate behavior and sexual harassment, which is a very shameful act for India. But the news is that action has been taken against him and he has been suspended, right? Begin please. Action on cyclist harassment complaint is an encouraging sign. Rapid action लिया गया उस साइक्लिस्ट के harassment complaint के लिए, तो ये एक encouraging sign है. Overlooking abusive behavior can devastate those preyed upon. और overlook करना यानी कि इसको ignore करना, abusive behavior को destroy कर सकता है उनको जो कि इस तरह से harassed हों. They are preyed upon means जो इसका शिकार हुए इस problem का उनको. Within days of a top women cyclist accusing the national spread team, Chief Coach R.K. Sharma of inappropriate behavior, the Sports Authority of India swung into action. कुछ ही दिनों के अंदर जब कंप्लेंट की वुमेन साइक्लिस्ट ने और उन्होंने अक्यूज़ किया, ब्लेम किया
नेशनल स्प्रिंट टीम चीफ कोच को आर.के. शर्मा को इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्वंग इनटू एक्शन, दे केम इनटू एक्शन एंड टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उसका टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया। नोटिंग दैट प्राइमा फेसी the case is established and the allegations of the athlete are found to be true। और ऐसा माना गया कि prima facie is बिल्कुल based on first impression and which is accepted to be correct, और जब तक कि उसको otherwise prove नहीं किया जाता तब तक allegations को true मान लिया गया। The swift action of the cyclist complaint is a welcome departure from how similar cases have been dealt with in the past। welcome departure means कि इस तरह के सिमिलर केसेस पास्ट में किस तरह डील किए जाते थे इग्नोर करके, और उससे बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट किया और स्विफ्ट एक्शन लिया एसओआई ने, और स्विफ्ट एक्शन लिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, राइट। In 2020, an investigation by this newspaper has found that over a 10-year period, there were 45 complaints of sexual harassment at the SAI। एक 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें ये पता चला कि 10 ईयर्स पीरियड में 45 कंप्लेंट्स की गई सेक्सुअल हरासमेंट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। 29 अगेंस्ट कोचेस, उनमें से 29 कोचेस के अगेंस्ट थी, विच हैड रिजल्टेड इन 5 कोचेस बीइंग पेनलाइज्ड विद पे रिडक्शन, और 5 कोचेस को पे रिडक्शन का पनिशमेंट दिया गया। द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 2 बीइंग टर्मिनेटेड, 2 के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए गए, एंड द सस्पेंशन ऑफ 1। Many of the accused were simply transferred or penalized with a small cut in pension, और ज़्यादातर accused को सिर्फ थोड़ा सा पेंशन में कट करके और छोटे मोटे ट्रांसफ़र देकर और छोड़ दिया गया। In several cases, even an inquiries dragged on, the coaches were allowed to continue work with यंग स्पोर्ट्स पर्सनस, और कुछ केसेस में तो जब इंक्वायरी चल रही थी तो यंग स्पोर्ट्स पर्सन के साथ उनको काम करना अलाउ किया गया। दे वर नॉट स्टॉप फ्रॉम दैट। दिस मोस्ट रीसेंट केस इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ वल्नरेबल इंडियाज़ यंग एथलीट्स रिमेन टू प्रेडेटर्स। ये रीसेंट केस एक ग्रिम रिमाइंडर, एक वेरी सीरियस रिमाइंडर है कि कितने वल्नरेबल हैं, मतलब बहुत इजीली उनके शिकंजे में आ सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, हार्म हो सकते हैं। इंडिया के यंग एथलीट्स दे रिमेन टू प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स आर जो भी उनको हरास करते हैं, परेशान करते हैं। Many of whom are trained physiotherapists etc. with whom they work in close physical proximity। उनमें से बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और उनके बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी कि बहुत ही नज़दीकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स में उनको रहना पड़ता है। ऑफन ट्रैवलिंग एंड शेयरिंग होटल रूम्स विद देम, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है उन सबके साथ, और कभी कभी होटल रूम्स भी शेयर करने पड़ते हैं। दिस इज़ अ ड्रेरी familiarity of the sordid episode। Dreary is very dull, very bleak, very continuing, repeating familiarity of the sordid। Sordid is बहुत ही dirty, बहुत ही गलत episode है, ये काम है, immoral act है। The cyclist who was part of a team that travelled to Slovenia to train for the Asian Championship। ये cyclist उस टीम का पार्ट थी जो कि स्लोवेनिया ट्रैवल कर रहा था ट्रेनिंग लेने के लिए एशियन चैम्पियनशिप की। हैज़ alleged that शर्मा forced himself into her room। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि शर्मा उनके रूम में ज़बरदस्ती घुस आए। ऑफर्ड हर पोस्ट ट्रेनिंग मसाज, और एक पोस्ट ट्रेनिंग मसाज भी ऑफ़र की। आस्क्ड हर टू स्लीप विद हिम एंड सेड ही वांटेड हर टू बी हिज वाइफ, और उससे कहा कि वो उसकी वाइफ बन जाए, राइट। एनी रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन और गोइंग अगेंस्ट, ही एलिजिडली वॉर्नड हर, और उन्होंने इसको बहुत ज़ोर दे के वॉर्न किया कोच ने कि वुड मीन टू एंड हर करियर, किस तरह से उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। सिमिलर टैक्टिक्स ऑफ इंटिमिडेशन वर एलेज्ड टू हैव बीन यूज्ड बाय, इसी तरह के टैक्टिक्स ऑफ इंटिमिडेशन मतलब डराने वाले और स्केयरिंग और फ्राइटनिंग जो टैक्टिक्स हैं वो एलेज किए गए थे। एलेज मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, किनके ऊपर? पी नागराजन। टू साइलेंस मेनी यंग वुमेन एथलीट्स, बहुत सारे वुमेन एथलीट्स को चुप कराने के लिए। हु हैड एक्यूज द चेन्नई बेस्ड एथलेटिक कोच, कौन है ये चेन्नई बेस्ड एथलेटिक कोच? पी नागराजन। इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे लास्ट ईयर ऑफ प्रेइंग ऑन देम अंडर द गाइज ऑफ होल्डिंग ट्रेनिंग सेशंस, और ट्रेनिंग सेशंस
को प्रिटेंड करते हुए वो बहुत सारे गलत एक्ट करते थे गर्ल्स के साथ, जो कि रिपोर्ट किया गया था उनके अगेंस्ट. द harrowing डिटेल्स, harrowing मीन्स डिस्ट्रेसिंग, ट्रबलसम डिटेल्स, रिकाउंटेड बाय नागराजन्स एक्यूजर्स. नागराजन के जो एक्यूजर्स थी गर्ल्स, उन्होंने उनके अगेंस्ट कौन कौन से वो लगाए, ऑफ रिलेंटलेस मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर. रिलेंटलेस इज कंटिन्यूस, बिल्कुल नॉन एंडिंग इमोशनल और मेंटल प्रेशर, नर्वस ब्रेकडाउन्स एंड एंग्जाइटी. ये सब फेस कर रही थी वो गर्ल्स एथलीट्स. फाइंड एन इको इन द साइक्लिस्ट अकाउंट. इको हेयर मीन्स कि इस साइक्लिस्ट के अकाउंट में, इस साइक्लिस्ट की बातों में और इस पूरे केस में उसी केस का एको सुनाई दे रहा है, यानी कि फिर से रिपीट हुआ वही जो पहले हुआ था और एक्शन नहीं लिया गया था, इसलिए अब वो इस तरह से अलग अलग तरह से सामने आ रहा है. Overlooking abusive behavior can, as in the Larry Nassar episode in US Gymnastics, अगर ओवरलुक किया जाए या फिर इग्नोर किया जाए अब्यूसिव बिहेवियर को, जैसा कि किया गया लैरी नासर एपिसोड में US जिम्नास्टिक्स में, where investigation into the hundreds of complaints of sexual abuse were botched. और वहाँ पे भी hundreds of complaints थी sexual abuse की. Botched means carelessly done work and it was never always neglected, ignored. With over 90 survivors now suing the FBI. उनमें से 90 survivors आज भी cases रन कर रहे हैं, sue कर रहे हैं FBI में. Take a devastating toll on the mental, emotional and physical well-being of those who are preyed on. इस तरह से mental, emotional, physical well-being पे बहुत ही devastating, बहुत ही destroying effect होता है. The revelations of sex abuse in India's sporting centers should also spur all stakeholders. The revelation means सामने लाना sexual abuse का, किसमें, इंडिया के sporting centers में. should also spur encourage stakeholders to come together, कि सभी साथ मिलकर आएँ and formulate better ways to protect athletes, और उनको protection दें athletes को, नए ways finalize करें. Many of whom are minors, बहुत सारे ये minors भी हैं. The immediate response to the cyclist complaint and her removal to safety and the fact that Sharma was punished are encouraging signs. ये तीनों ही बातें बहुत encouraging हैं कि immediate response लिया हमारी sports authority ने उस cyclist की complaint पर, और she was removed to safety means उन्हें पूरी safety दी गई, and the fact that Sharma was punished और शर्मा को punish किया गया, ये सभी encouraging signs हैं. Please subscribe to the channel. Don't forget, don't forget. Share this video with all your friends.